Thank you very much, Divide and tell. Deputy Chairman, sir. I rise to in support of the bill regulating and operationalizing the new pension system and giving it a legal framework. Many years after it was first initiated by the NDA government way back in 2003. The intention of the proposed new pension scheme was quite laudatory. It had addressed many of the issues which were brought out as a part of the OS's recommendations which came out in 2000-2001. And in the year 2003, the government proposed to introduce the new pension system, which since then has made rapid strides in the last 7 or 8 years since it was operationalized. Of course, the government changed in 2004, and though the central government had operationalized the new pension system from 1st January 2004, the NDA government could not conclude it in terms of the new law. The UPA government brought this in terms of a PFRDA Bill 2005 and introduced it in Parliament. It went to the standing committee. And within 9 months, the bill was introduced in March 2005, and the standing committee gave its recommendations on 26 July 2005, which in my opinion was a fairly quick response to the proposed bill. At the outset, I'm a little unhappy and sad that the government sat over those recommendations from 2005 until 2009 and only brought these as official amendments in the law in January 2009. Soon thereafter we had parliamentary elections and the bill could not be passed. So since 2004 until 2013, for 9 years, this has been functioning under government regulation and the government orders without having any legislative framework. I wish the government had given the powers to this body, given teeth to this body to regulate the body and popularize the scheme and reach out to the non-organized workers, the non-organized sector labor far more than it has today, when after 9 years it has been able to reach out to about 4.5 million or 5 million pensioners. Of course, I'm glad that the bill has finally been brought in. But even then, as we look at that bill today, we find there are certain things on which this bill could have probably done better. The OSS project in 2000 had given certain directions, certain guidelines, and the pension reform that we had expected was largely focused on reaching out to the non-organized sector. I think while the government, many state governments, central government employees have compulsorily transited to the new pension scheme, given the nature of government regulations and the fact that they stopped the old pension benefits. Today we have a situation where the government employees are coming under the new pension scheme, but their interests are not equally provided as they should have been provided and which were given or which were available to them under the old pension schemes. So at the outset, I would like to request the finance minister to have a look at the existing schemes as they prevail, as the central government and state government employees are benefited from, and make sure that none of the provisions under this new act contravene the original law and regulations made thereunder, and also to ensure that the benefits that the people were able to enjoy under the old scheme continue. And in that respect, one important issue that I would like to highlight to the Honorable Minister, जहां तक पुराने प्रावधान का सवाल है, एक 2 सितंबर 2008 को एक गवर्नमेंट का ऑफिस मेमोरेंडम निकाला गया था और उस ऑफिस मेमोरेंडम के हिसाब से हर एक पेंशनर को मिनिमम न्यूनतम एट द बेस लेवल सबसे कम 3,500 रुपए की
पेंशन का सुविधा का प्रावधान लाया गया था। ये ऑफिस ऑर्डर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नंबर 38/37/08 ऑफ द PNPW (A). 2 सितंबर 2008 को ये ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया गया, जिसमें धारा 5.5 में लिखा गया है कि अमाउंट ऑफ पेंशन शैल बी सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ ₹3,500 एंड मैक्सिमम अप टू 50% ऑफ हाईएस्ट पे। तो 3,500 रुपए हर एक व्यक्ति को किसी भी हाल में पेंशन के रूप में मिलने वाला था। अब दुर्भाग्य से अगर किसी व्यक्ति का मौत हो जाए, दुर्भाग्य से अगर कोई व्यक्ति अपाहिज हो जाए और उसने 1 साल 2 साल 3 साल नौकरी की हो और उसकी जो कंट्रीब्यूशन गई है पेंशन फंड में वो बहुत थोड़ी हो, 2-3 साल में शायद 10-20 हजार 50 हजार रुपए कलेक्ट हुए हो, उसके हिसाब से उसके परिवार को या अपाहिज आदमी को पेंशन मिलेगा 100 रुपए 200 रुपए 300 रुपए। अब आप ये परिस्थिति तो नहीं चाहते, मुझे लगता है सदन में कोई भी मेंबर ये नहीं चाहेगा कि ऐसी घटना के बाद ऐसे एडवर्स परिस्थिति में उसकी पेंशन 3,500 रुपए भी नहीं हो। आपकी खुद की गरीबी की रेखा आज लगभग 900,000 रुपए प्रति आदमी है। तो एक फैमिली साइज ऑफ 5 में आप खुद कहते हैं कि 5,000 4,500 5,000 रुपए में आदमी गरीब है, पर आपके नए स्कीम में कोई भी प्रावधान ऐसा नहीं है जिसमें कुछ तो बेस हो, कुछ मिनिमम पेंशन की एश्योरेंस हो जो भी व्यक्ति नए पेंशन स्कीम में जाता है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, मेरी आपसे अपील है ऑनरेबल मिनिस्टर कि आप इस पे गौर करें और इस सदन को आश्वासन दें, काइंडली गिव एन एश्योरेंस टू दिस हाउस that you will ensure a basic level, a minimum pension will be guaranteed to everybody who comes under the new pension scheme. This is a demand of the labor from all across the country. Yesterday we found there were agitations throughout the nation on this subject, और इसका कोई आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ज्यादा नहीं पड़ेगा, PFRDA के ऊपर भी इसका कोई खास बर्डन नहीं पड़ेगा। इसके 2 रास्ते हो सकते हैं, आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल सकते हैं जिसमें अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो, ऐसा कोई समस्या है तो ऐसे व्यक्ति को इंश्योरेंस के द्वारा 3,500 रुपए मिल सकते हैं, और जब आपके पास 50 लाख 1 करोड़ 5 करोड़ आस्ते आस्ते बढ़ते हुए कंट्रीब्यूटर्स होंगे तो इसका जो इम्पैक्ट होगा पूरे स्कीम पे इट में भी barely 0.001% ऑफ द स्कीम। तो मुझे लगता है जो आप फीस और सर्विस चार्जेस लेंगे उसमें से ये प्रावधान करने में आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी। पूरे सदन की मेंबरान जब अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी जाएंगे तो जब लैंड बिल की चर्चा होगी और फूड सिक्योरिटी की चर्चा होगी तो मुझे लगता है कामगार भी खड़े होकर ये पूछेंगे कि आपकी सरकार ने हमारे लिए क्या किया, आपकी सरकार ने हमारे सिक्योरिटी के लिए क्या किया। एक तरीके से लेबर की सिक्योरिटी भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मिनिमम पेंशन का प्रावधान, और 2008 में अगर 3,500 रुपए था तो डबल डिजिट इन्फ्लेशन पिछले 5 साल का आप भी जानते हैं वित्त मंत्री जी, तो मुझे लगता है कम से कम 5,000 रुपए मिनिमम पेंशन के रूप में, और वो आपकी गरीबी रेखा है, आपके प्लानिंग कमीशन की गरीबी रेखा है, कम से कम 5,000 रुपए मिनिमम पेंशन के रूप में प्रावधान लाया जाए। प्रावधान अब आज बिल में अमेंडमेंट हम नहीं इंसिस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप रूल्स रेगुलेशंस द्वारा या ऑफिस ऑर्डर द्वारा इसको इशू कर सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर आप जरूर सदन को और देश के हर कामगार को आश्वासन दें कि ये प्रावधान लाया जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि आपने स्टैंडिंग कमेटी की सभी रिकमेंडेशंस एक छोड़ के एग्री की। वैसे मेरा मानना है कि जो आपने एक छोड़ी है वो छोड़ने की आवश्यकता नहीं थी सर। आप देखिए हमने क्या लिखा था स्टैंडिंग कमेटी में, हमने कहा था विड्रॉल्स अलाउ करें जो आपने अलाउ किया है, साथ में एडवांस फैसिलिटी भी अलाउ करें। अब आप सिंगापुर का मॉडल देखिए, सिंगापुर में लोगों को अपने घर की मालकियत कैसे दी। सिंगापुर में पहले सभी लोग किराए के घर पे रहते थे, वो घर मेंटेन नहीं होते थे, अच्छे नहीं बनते थे, लोगों को उसमें एक अपनापन नहीं आता था। लेकिन जब सरकार ने रियलाइज किया कि मलकियत बहुत जरूरी है, सरकार ये घरों के लोगों के लिए एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, एक प्राइड ऑफ ओनरशिप
लीडरशिप, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधरती है एक परिवार की। तो इन्होंने अपने पेंशन स्कीम, अपने प्रोविडेंट फंड स्कीम, अपनी सेविंग स्कीम से लोगों को ये सुविधा दी कि नॉमिनल इंटरेस्ट पे, डिस्काउंटेड इंटरेस्ट, या अगर आपके मिनिमम गारंटीड रिटर्न समझो 8% है, तो 8% पे जो लोग अपना घर बनाना चाहें, किसी के यहाँ कोई दुर्घटना हो जाए, कोई बीमार हो जाए, कोई कैंसर से पीड़ित हो जाए, किसको हार्ट ऑपरेशन हो, ऐसे परिस्थिति में उसको मनी लेंडर के पास ना जाना पड़े, उसको बैंकों के 12-14% ब्याज के दर जो पिछले 4-5 साल में एकदम तेजी से बढ़े हैं, उस प्रकार का ब्याज का बर्डन नहीं हो। और ऐसा नहीं हो कि उसको एक तरफ से वो अपने प्रोविडेंट फंड पेंशन में पैसे भर रहा है जिसमें उसको 8% रिटर्न मिल रहा है, और बाहर वो लोन ले बैंक से 12%, 14% पे अपनी दुर्घटना या अपने घर बनाने के लिए। तो मुझे लगता है इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपके फंड का भी 8%, 9% रिटर्न रहेगा। उतने पैसे पे अगर आप आदमी को विड्रॉल किए और एक्सेस लोन की सुविधा दे, तो मुझे लगता है इसमें कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। ये करना चाहिए। आप इस पर पुनः विचार करें, ऐसे मेरी आपसे दरख्वास्त है। एक एफडीआई का विषय सर पेंशन में बहुत ज्यादा चर्चित है, और इसके बारे में अन्य विदेश देश भर में बहुत ज्यादा बातचीत होती रहती है, और कई बार हमें टीवी डिबेट्स पे और चर्चाओं में घेरने की कोशिश की जाती है कि विपक्ष एफडीआई के विरोध करता है, एफडीआई के खिलाफ है, और हमें पेंशन बिल नहीं लाने दे रहा है सदन में। पेंशन बिल तो आप 2005 में लाए थे, 2005 में अप्रूव कर सकते थे, आपका बहुमत था, सब कुछ था। अब आपकी नीयत थी कि नहीं मुझे पता नहीं 2005 से पास करने की, पर आज सडनली आप बात कर रहे हैं एफडीआई इन पेंशन की। मैंने एक बार इसी सदन में विषय उठाया था, सर पेंशन का जो फंड मैनेजर होता है उसकी कुल जो राशि है, जो कुल कैपिटल है, वो मिनिमम कैपिटल 25 करोड़ रुपए है। आज 6-7 कंपनियां हैं जो पेंशन बिजनेस में हैं, उसकी सूची भी मेरे पास है। 3 तो वित्त मंत्री जी ने कहा कि सरकारी है। अब इन पेंशन फंड को 25 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ भी अगर कैपिटल लगे, उसके लिए एफडीआई की क्या आवश्यकता है? क्या इस देश की ये परिस्थिति है कि 26 से 49 नहीं किया आपने एफडीआई पेंशन में तो देश खत्म हो जाएगा, एफडीआई आना बंद हो जाएगा, विदेश में लोग बड़े नाराज हो जाएंगे? मुझे आज तक नहीं समझ में आ रहा है कि आपको इतनी उत्तेजना, इतना ज्यादा उत्साह क्यों है कि ये पेंशन फंड्स भी विदेशों के हाथ में जाए, या इसका कंट्रोल, इसका मैनेजमेंट भी विदेशियों के हाथ में जाए। आखिर भारतीय एक सक्षम है, भारतीय लोग समझते हैं इन सब चीजों को अच्छी तरह संभालना। हमारे पास बड़े बड़े अच्छे अफसरान हैं जिन्होंने बड़े बैंक चलाए हैं, पेंशन फंड को 60 साल 70 साल से चला रहे हैं। तो आज हमें 25 करोड़ में 49%, मतलब आप 12 करोड़ के विदेशियों के मोहताज हैं क्या? आखिर पेंशन फंड में तो कोई कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो नहीं है बैंकों की तरह या इंश्योरेंस की तरह, दे आर ओनली फंड मैनेजर्स। तो 25 करोड़ कैपिटल, और इस पे आपकी जो फंड अथॉरिटी है उसका भी एक न्यूज़पेपर में इंटरव्यू छपा था, वो भी मेरे पास है, अगर मंत्री जी चाहे वो भी मैं बटन पर रख सकता हूं, जिसमें स्वयं कहा गया कि एफडीआई इन पेंशन इज इमटेरियल, इट डज नॉट मैटर 26 हो, 49 हो, 0। We are capable of handling pension funds ourselves, and we can live without FDI in pension. This is a provision which is absolutely irrelevant. There was no need to even link it to insurance. Insurance में capital adequacy का clause होता है। शायद परिस्थिति आ सकती है कि वहां आपको और विदेशी निवेश की जरूरत पड़े, लेकिन पेंशन में ऐसी कोई कैपिटल एडिक्वेसी की जरूरत नहीं। तो मैं समझता हूं कि जैसा आपने इसमें इंश्योरेंस से लिंक किया, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। ट्रेड यूनियंस को वैसे ही काफी उत्तेजना है, काफी गुस्सा है इस विषय के ऊपर। हम क्यों बिना बात देश में वातावरण खराब कर रहे हैं? इसमें 26% चलते जाता है जो पहले से चल रहा है, एक सिलसिला बैठ गया, अब इसको 49 करने की कोशिश और इंश्योरेंस को करते हुए इसको भी उसके साथ डालने से मुझे लगता है हम एक गलत मैसेज भेजेंगे देश में। लोगों को थोड़ा डर है कि उनका पैसा अगर फॉरेनर्स इन्वेस्ट करें, कितनी सेफ्टी पे ध्यान रखेंगे, कितना उनका इंटरेस्ट
इंडियन इंटरेस्ट के साथ अलाइन रहेगा। और इसीलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है ऑनरेबल मिनिस्टर कि इस पे आप पुनर्विचार करें और चाहे इंश्योरेंस पे जो भी निर्णय होते हैं आगे, उसका ये मतलब नहीं है कि पेंशन में भी हम जबरदस्ती 49% FDI को स्वीकृत करें। सर, एक विषय जो मंत्री जी ने भी अभी दोहराया, स्टैंडिंग कमेटी ने कहा था कि मिनिमम रिटर्न या गारंटी लाई जाएगी। मैं उस बात का स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि बाय डिफॉल्ट हर एक व्यक्ति जो पेंशन फंड में पैसा डालता है, द डिफॉल्ट ऑप्शन शुड बी दैट इट गोज इनटू अ गारंटीड रिटर्न स्कीम। हमने इंश्योरेंस में देखा और खास करके जो प्राइवेट फॉरेन कंट्रोल या फॉरेन मैनेज इंश्योरेंस कंपनीज गत 10 वर्षों में आई हैं, उन सभी कंपनीज ने उपभोक्ता के साथ छल किया है, उनको गलत स्कीम्स बेची है, उनको रिटर्न्स के बारे में गुमराह किया गया है। और पिछले 2-2.5 साल पहले जब सेबी ने 2010 में थोड़ा अंकुश लाए थे, कंट्रोल लाए थे, उसके पहले का अगर आप इंश्योरेंस का बैकग्राउंड देखें तो लोगों ने भरपूर नुकसान पाया है। मैंने भी स्वयं विद ऑल माय नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज, I myself, when I studied my insurance policies to speak on the same house, I realized how I was made by the insurance companies. अब ये pension funds जो Unparliamentary word, even if it is applied to which all expense, which all unparliamentary, तो मैं खुद के even if you mean for you it is expense. तो I was also misled and a mis-selling of a policy was done to me. जो पेंशन फंड स्कीम में आएंगे लोग, वो तो साधारणतः एक सामान्य कामगार होंगे जिनकी इतनी ज्यादा फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो मैं समझता हूं कि डिफॉल्ट ऑप्शन PFRDA में कंपल्सरी होना चाहिए कि वो पैसा मिनिमम शॉर्ट रिटर्न में जाएगा अनलेस द पर्सन ऑप्ट्स टू गो इनटू एन इक्विटी स्कीम। और मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी प्रावधान है, नहीं तो जो सेलिंग एजेंट्स आएंगे वो लोग only 3 more minutes. Sir, you please don't disturb when it spoils the flow. 5 minutes more. तो इससे मुझे लगता है कि लोगों के साथ इस प्रकार का गलत दुरुपयोग ना हो इस ऑप्शन का कि वो लोग इक्विटी में डालें। जब तक अच्छी तरीके से वो व्यक्ति समझे नहीं इसके क्या डाउनसाइड रिस्क है, तब तक उसको इक्विटी में डालना नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि ओवरऑल भी कुछ लिमिट रखनी चाहिए कि in any case not more than 25 or 40% can, even at the option of the subscriber, be put into the equity scheme. सर, अभी तक 45 लाख पेंशनर्स आए हैं इन दी NPS। कुछ मात्रा में तो ये इसलिए भी है कि जब जॉब्स ही नहीं क्रिएट हो रही है भारत की अर्थव्यवस्था में, there is almost no jobs, there is only consumption led growth for the last 9 years, तो ऑब्वियसली न्यू पेंशन स्कीम में लोग भी कम आएंगे। फिर उसके बावजूद मुझे लगता है कि थोड़ा एफर्ट और करें और अनऑर्गेनाइज वर्कर्स तक पहुंचने की एक सीरियस कोशिश ये सरकार और उनकी PFRDA करे तो और ज्यादा लोगों को इसमें लाया जा सकता है। ये जो अपने स्वावलंबन स्कीम लाए हैं, इसमें मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन 6,000 रुपए सालाना रखी गई है। अब गरीब आदमी 6,000 रुपए कहां से देगा? वो तो अपना घर नहीं चला पा रहे आज की महंगाई में। सर, 500 रुपए है महीना तो 6,000 रुपए सालाना होगा। 6,000 रुपए की लिमिट मुझे लगता है या तो 2,000 या 1,500, 2,000, 2,500 करनी चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस स्कीम में आ सके और स्वावलंबन का भी सक्सेस हो और ज्यादा एडवर्टाइजिंग हो, लोगों तक पहुंचे। मेरे हिसाब से अगर सरकार की नीयत वास्तव में अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को इसमें लाने की है तो उनको, अगर आदमी 1,000 रुपए इसमें कंट्रीब्यूट करता है तो सरकार में 20% ज्यादा 1,200 रुपए कंट्रीब्यूट करने चाहिए। एक तरीके से लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए कि आप इस स्कीम में आओ और अपनी ओल्ड एज की पेंशन की व्यवस्था इसमें क्रिएट करो। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी जो सिचुएशन है, लेस देन 1% of the people and less than 1% of the AUM is from the unorganized sector. We should make a serious effort to increase this, and that can be only done with greater publicity and by incentivizing the people to come under the scheme. Last point, sir, the current MPS
is exempt tax. Whereas the existing pension schemes are exempt. पुरानी स्कीम में जब पैसा आदमी इसमें डालता है तब भी उसको टैक्स एग्जम्पशन मिलती है, और जब पैसा वापस मिलता है तब भी उसको टैक्स एग्जम्पशन मिलती है। अब मैं समझ सकता हूँ वित्त मंत्री को ज्यादा पैसे की जरूरत है और सब पे टैक्स करना है क्योंकि उनकी स्कीमों को सक्सेस करना है, तो मुझे लगता है कि जब ये पैसा वापिस आता है लोगों के पास तब भी वो पैसे को एग्जम्पशन मिलनी चाहिए। There should be an exempt clause in the scheme, and I hope the honorable minister will seriously look at that and make sure that the people are not there, so they need to pay tax after the money comes back to them. But sir, I want an assurance from the minister for a minimum pension of 5,000 rupees, and I would seek the support of the entire house on this, that minimum pension should be guaranteed to anybody under the NPS. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Sri Ramchandra